हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज 22 अगस्त 2023 को वी विल स्टार्ट दी हिंदू एनालिसिस। और आज हम जो हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं, इफ यू कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल न्यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वेदर इट्स फ्रॉम दी कावेरी रिवर डिस्प्यूट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट देयर विल बी ए न्यू बेंच विच विल बी सेट अप फॉर दिस। एंड अगर आप देखो तो ब्रिक्स रेटोरिक और दी ब्रिक्स जो समिट होने वाला है और इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें दो न्यूज़ आई है ऐसे जो ब्रिक्स से रिलेवेंट है। प्लस इफ यू सी मोर फ्रॉम दी सऊदी अरेबिया एंड यूएई डिवाइड बिकम्स पब्लिक, दिस केम इन द एडिटोरियल सेक्शन। और ये भी हम देखेंगे दैट व्हाट्स द डिस्प्यूट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई। Plus, we will also see that smartphone manufacturing in India and what's the current discussion about it and why is Raghuram Rajan going against it. Plus, we will also see that what are the issues there in the environment and ecology which are highlighted in the current this today's newspaper, and how can we do the indigenization of research methodology and the research tools. ठीक है, तो let's start the discussion with the first news. As the news highlights that Supreme Court has taken it on its own that अगर आप देखो तो Justice Chief Justice of India Honorable D.Y. Chandrachud has said that they will order the formation of a new tribunal or a bench. They will constitute a bench to hear the state's plea for the release of the water of Cauvery river. अब interstate water disputes को अगर हम देखें तो let's see what happens further in this dispute on Cauvery. But if we see, if we have to revise for our prelims the interstate water disputes, ठीक है, तो recent case of Krishna, Cauvery, सतलुज, दिस पॉप्ड अप दिस ईयर ओनली। इसी साल तीनों रिवर्स पे जो केसेस हैं बहुत बार आए हैं। और अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो रिलेट करते हैं हमारे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से, दैट इज एंट्री 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 17। इट सेज दैट द वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज will be taken care with the embankments and water storage and hydropower also comes under the legislative jurisdiction of the state. Then entry 56 of union list empowers union government for the regulation and development of interstate rivers and river valleys. ठीक है, तो इन दो एंट्रीज को याद रखना है। प्लस देर इज आर्टिकल 262 which provides that Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute which comes out of the distribution of control of waters. So the power here is with Parliament to make laws for the disputes on water distribution. Plus, if you see that in such scenario, Parliament has already made a mechanism under Article 262 through the River Boards Act, जिसमें Government of India has established the boards or the river boards for interstate rivers and river valleys. ठीक है, however this law was made but no such river board was created till date. ठीक है, however अगर आप देखो तो interstate water disputes act 1956 आया which said that the central government will constitute a tribunal for the resolution of the disputes between the two states over the formulas or the awards which will be given by these tribunals or the water tribunals or the Cauvery water tribunal जो बन चुका है। ठीक है, the awards and formulas for water distribution by these tribunals
will not be questionable by the Supreme Court. However, the functioning of this and the working of this tribunal can be checked under the doctrine of judicial review. ठीक है, तो Interstate Water Disputes Act 1956 was amended in 2002 और on the recommendations of Sarkaria Commission, जिसमें the time frame for setting up a tribunal is 1 year and the dispute resolution verdict or the decision of this tribunal has to come out in 3 years. ठीक है, तो दिस इज द टाइम फ्रेम और इसमें हमने वी हैव ऑलरेडी सेट अप ट्रिब्यूनल्स ऑन फॉर कृष्णा रिवर, महानदी रिवर, महादई रिवर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका एंड रावी एंड बियास रिवर एंड वंशधारा रिवर ऑल्सो. ठीक है, तो कितने हमने अभी तक ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं फॉर कृष्णा, महानदी, महादई रिवर, रावी एंड बियास एंड वंशधारा. ठीक है, तो इतने जो रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स हैं ऑलरेडी बन चुके हैं. तो वी नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स एंड वी नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स फॉर आवर प्रीलिम्स, अपकमिंग प्रीलिम्स यूपीएससी 2024. तो लेट्स मूव अहेड. नाउ कम्स द मेन लीड एडिटोरियल अबाउट ब्रिक्स. ठीक है, सो द ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रेटोरिक. व्हाट डज दिस मीन? दैट India is about to the summit in South Africa is about to happen. 2023 वाला जो समिट है साउथ अफ्रीका में होगा और साउथ अफ्रीका में जो समिट होने वाला है वहां पे पीएम मोदी जी पहुंच गए हैं. और कहाँ पे होने वाला है? डर्बन में होने वाला है समिट. और ये जो ब्रिक्स का समिट है, नाउ द एडिटोरियल हेयर, द लीड एडिटोरियल वाज रिटन बाय हैप्पीमन जैकब. और ये लीड एडिटोरियल जो हम पढ़ेंगे अभी, ये लीड एडिटोरियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज दिस डिस्कसेस द मल्टीपोलैरिटी सिनारियो of which is surrounding the BRICS nations and which is surrounding the platform of BRICS and how India can sail through it. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा होने वाला है इस चीज को. हाउएवर उससे पहले हम टॉपिक डिस्कस करें बट हमें प्रीलिम्स के पॉइंट्स कुछ रिवाइज करने पड़ेंगे. ठीक है, चलो ये लास्ट में करते हैं. प्रीलिम्स के पॉइंट्स वो टॉपिक डिस्कस करने की बात करते हैं ताकि समझ आ जाए पहले ब्रिक्स में इंपॉर्टेंस कितनी है ब्रिक्स की. ठीक है, तो दिस आर्टिकल स्टार्ट्स विद दिस थिंग दैट once again New Delhi is back in the thick of global geopolitics of things, chairing summits, navigating tricky Machinean choices, ducking geopolitical whirlwinds, and negotiating a place at high table of global governance. ठीक है, नाउ द थिंग इज अगर आप देखो तो SCO, G20 है ना, ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ साउथ, डेमोक्रेसी एंड मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दीज आर द टर्म्स विच यू माइट हैव हर्ड in the past year since the G20's presidency of India is on the discussion of every news platform. Now the thing is कि इस टाइम पे जब इंडिया नेविगेट कर रहा है डिप्लोमेटिक टेबल्स के थ्रू, what is the scenario of international governance here? What is the scenario of global governance here? So the scenario here is that the upcoming BRICS जो अभी समिट आने वाला है साउथ अफ्रीका में from 22 अगस्त to 24 अगस्त will be important for India's diplomacy. क्यों important होने वाला है? Because you can see that India can assert, India has multiple choices now, and it has to assert itself on some platforms, and it has to check the steady Chinese influence, and it has to also check the normative approach of Western politics कि जो West इससे expect कर रहा है इंडिया से, that how India should act in Indo-Pacific region. That is one question. Second question is it has to negotiate for itself a place in Eurocentric forums. जैसे हमारा UNSC है, वहां पे रिफॉर्म्स, या G7 में रिफॉर्म्स, वहां पे इंडिया को सीट प्रिजर्व करना. दीज आर द क्वेश्चंस which India can start delivering on an answer at the upcoming BRICS summit. ठीक है, so these questions have to be answered by India and have to be approached by India with this BRICS summit.
तो अब क्या करेगा इंडिया इस ब्रिक्स समिट में और क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया को इस ब्रिक्स समिट में, वी विल सी दोज चैलेंजेस. So the geopolitical developments of the past year or so and the challenges faced by United Nations system may have given another lease to the life of BRICS. So it says that जैसे यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गन्स है, वो सारी चीजें अगर आप देखो तो ड्यू टू मल्टीपल चैलेंजेस लाइक चाइना का टेरिटोरियल अग्रेशन, रशिया यूक्रेन वॉर, cold or post-cold world order, Chinese dominance and Chinese expansion in its South China Sea, and then Chinese revival of its hegemonic power. तो वो सब चीजें और द चैलेंज टू यूएस हेgemony, these are such issues जहां पे यूनाइटेड नेशंस एंड द सिस्टम और द ग्लोबल गवर्नेंस और वी कैन से द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, have come under question. So at this point of time, what we have to do is BRICS. ठीक है, तो these regional forums or the multipolar forums can provide a way forward for the global diplomacy. So in such scenario, अब global governance में क्या होगा यहाँ पे? So the global governance here, as highlighted by Happy Mon Jacob, is as that it reeks, the global governance reeks of deeply undemocratic practices. कैसे undemocratic practices है? Because there is no need of repetition. These are undemocratic, these are practicing undemocratic practices because अगर आप देखो तो he highlights this thing that global governance institutions जो है, इस एक वर्ड के पीछे का क्या मतलब है undemocratic practices, that जितने भी ये global level के institutions है, they are mainly like they mainly are governed by those countries which support them with funding. ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज है जो ज्यादा पैसा दे रही है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन्हीं कंट्रीज को उन ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबरशिप मिलती है और उनके जो डिसीजंस होते हैं दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स दोज कंट्रीज विच फंड देम द मोर. So that is how he says that the global governance or the powerful countries or the superpowers or the developed world, they are actually practicing these, they are actually having the power in these global governance institutions. These institutions are deeply unrepresentative. Why they are unrepresentative and why he highlights that the character of these institutions has led to their failure, and why is there a little possibility of more inclusive system. और अगर ये सब चीजें हैं, that there is less inclusion, there is failure of global governance, then what is the importance of BRICS? Then BRICS becomes more important at this point of time, जब global governance के institutions fail कर रहे हैं. That is why BRICS has gained its importance. Now he highlights this thing that the 40 odd countries have formally or informally expressed their interest to join BRICS, which increases the significance of BRICS more. And if we say that, he highlights one more thing, that is the global order, which is going through a major churn of middle powers, regional heavyweights, and the outliers. They are weighing their options, exploring where they belong to, or trying to belong where they can. So this option of heavyweights or the regional powers, जितने भी मिडिल पावर कंट्रीज है या हैवी वेट पावर्स है जो लोकल लेवल पे है या रीजनल लेवल पे है, दे ट्राई to navigate their interests and they try to find a place in the global governance where they can fulfill their national interests. और इसी चीज को साबित करने के लिए he says that Ukraine war and steady rise of China have clearly provided a new lease of life to otherwise moribund BRICS. जो BRICS फोरम है जो ऑलरेडी मतलब इट वाज ऑन द डिक्लाइन, ठीक है, बट ड्यू टू दी रशिया यूक्रेन वॉर एंड चाइनाज राइज, दिस ब्रिक्स रिवाइवल ऑफ ब्रिक्स इज नाउ इन द लाइमलाइट. इसके बाद द एससीओ and the importance of SCO will lead to truly democratic global governance or multipolarity. So forums like this BRICS, not the BRICS or SCO, however, not the BRICS or SCO will lead to what? Will lead to truly democratic global governance or multipolarity. These forums are to replete with competing industries, interests, and calculations. He says that
there are no democratic expectations from these institutions, but the calculative interest fulfillment, है ना? And this will make the global governance more representative and inclusive, because there will be more in participation in these forums. As you see that already 40 countries have highlighted, have expressed their interest in these, in BRICS nations expansion, in the expansion of the BRICS organization. So international politics should not be a place for hegemonic perfection, but for the democratic imperfections. Why he says so? क्योंकि अगर आपको पता हो तो international relations or international politics works on only one like a basic principle, that is national interest. So national interest of countries, so the national interest of countries actually draws the activities and inspirations of all the nations in international relations. So it's only the national interest and the fulfillment of national interest which actually works in the international relations. This is the more realistic perspective, or the doctrine of realism in international relations, which was propagated by Machiavelli also. ठीक है, this was propagated by Machiavelli also. ठीक है, and the Machiavellian approach, you can say that this is the Machiavellian approach, है ना? That this is the Machiavellian approach, and you will see that Machiavellian approach इसका reference भी हैप्पी मोहन जैकब देंगे आगे. Now what is न्यू दिल्लीज डायलेमा इन सच सिनारियो? अब अगर यहाँ पे इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट नेशनल इंटरेस्ट की ही बात है, और मल्टीपोलैरिटी, या आप देखो तो द वेस्टर्न हेजेमनी इज अंडर चैलेंज एंड ईस्टर्न राइज इज ऑन द अराइवल, तो इस टाइम पे व्हाट आर द डायलेमास ऑफ दिल्ली? ठीक है, शुड इंडिया बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, or should it more focus on its own growth, or should it create more regional platforms so that the rise of east happens? ठीक है, should it be uh, again practicing the principles of NAM only, or should it actually focus more on the eastern hegemonic now eastern dominated world order? ठीक है, तो ही हाईलाइट्स हियर सम थिंग्स, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट हाउ इंडिया, चाहे इंडिया के पास चॉइसेस हैं या नहीं है, बट ये जितनी भी चॉइसेस को एक्सरसाइज करेगा, उतना ज्यादा देयर विल बी द राइज ऑफ अनइंटेंशनल राइज ऑफ चाइना. हाउ? सी हाउ. तो न्यू दिल्ली डायलेमा फॉर इंडिया, द जियोपॉलिटिकल चॉइसेस टुडे आर नीदर क्रिस्टल क्लियर नॉर इजी टू मेक. क्यों? बिकॉज इंडिया डज बिलोंग इन अ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप where there is tendency towards west to view India's membership of BRICS and SCO in the context of Ukraine war. जब वेस्ट इंडिया को देख रहा है दैट इंडिया का जो मेंबरशिप है ब्रिक्स में, इंडिया विल टॉक अबाउट यूक्रेन वॉर, इंडिया विल आल्सो टॉक अबाउट these standoffs between west versus non-west. India will talk about west versus east, west versus Russia at the forums, that is BRICS and SCO. But how can India be part of क्वाड जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड है, G20, G7 जो कि वेस्ट डोमिनेटेड है, ब्रिक्स एंड एससीओ जो कि डोमिनेटेड है बाय द डेवलपिंग कंट्रीज और द ईस्टर्न कंट्रीज और द पावर्स लाइक रशिया एंड चाइना, है ना? तो हाउ कैन इंडिया बी पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ एट द सेम टाइम? तो इंडिया इज करंटली navigating through different platforms, and India is balancing itself through different platforms and through multilateralism. So the undemocratic and unequitable governance structures of post world order जो ऑलरेडी है, लाइक वर्ल्ड बैंक, यूएनएससी, आईएमएफ, जो ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, ठीक है, तो इंडियाज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नॉन वेस्टर्न मल्टीलेटरल फोरम्स and India's response to the post World War institutions at the same time
is the balance. So the India's objective is not actually to create or belong to any anti-West or Western bloc either. But अगर आप देखो तो डेवलपमेंटली, अगर इंडिया को डेवलपमेंटल गोल्स अपने देखने हैं व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट, इट हैज टू बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स ब्रिक्स, एससीओ एंड ग्लोबल साउथ, क्योंकि यहीं से इसका डेवलपमेंटल पार्टनर्स मिलेंगे इसके, है ना। और हिस्टोरिकली या जोग्राफिकली अगर हम देखें तो वी बिलोंग टू दिस रीजन, है ना। बट स्ट्रक्चरली एंड एस्पिरेशनली जो हमारे एस्पिरेशंस है टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, टू बी द ग्लोबल वर्ल्ड लीडर, तो at that point of time we have to focus on G20, G7 and Quad like structures. But in the middle of an emerging geopolitical fault line with interests on either sides, welcomed by either side but fully belonging to neither, what does this line mean? ठीक है, ये आर्टिकल जो है ऐसे समझ आएगा भी नहीं अगर आपने लाइक खुद से भी ट्राई किया विदाउट हैविंग ए बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो यहाँ पे यही फायदा है कि जब आप वीडियो देखते हो तो वी डिस्कस लाइक आर मोटो इज दैट like our team is working on this the Hindu analysis. So the point here is that our basic motive is to develop that understanding inside you, ठीक है, so that you have that perspective of an UPSC aspirant and a bureaucratic perspective on multiple things, on the things from the basics till advanced. So the middle India as a result is located right in the middle of an emerging geopolitical fault line जहां पे इसके interests are on either sides, ठीक है। इसका इंटरेस्ट यहाँ पे भी है ग्लोबल साउथ में, इन कंट्रीज में, और इसका इंटरेस्ट यहाँ पे भी है। एज यू सी डेवलपमेंटल इंटरेस्ट आर हेयर एंड एस्पिरेशनल इंटरेस्ट आर हेयर, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया इज बीइंग वेलकम्ड बाय बोथ द साइड्स। इसको रशिया भी बुला रहा है और इसको यूएस भी बुला रहा है, बट India is fully not belonging to any side. India is not belonging to any side. It's not giving its commitments of alliance or partner based commitments to any of these sides. Then comes one of the major dangers of the current churn in global geopolitics is the rise of competing blocs इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसी टाइम पे अगर आप देखो तो दिस कैन बी ए ब्लॉक एंड दिस कैन बी बी ब्लॉक, और the west dominated block and the east dominated block, or the west dominated west hegemonic block, western dominated block, या यूएस लीडरशिप के अंदर कोई ब्लॉक और रशियन लीडरशिप के अंदर, चाइना लीडरशिप के अंदर कोई ब्लॉक। तो दीज आर द कॉम्पिटिंग ब्लॉक्स जैसे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे थे। तो द मेजर डेंजर इज देयर कि अगर ऐसे ब्लॉक्स बनते हैं जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे थे, तो देन व्हाट विल इंडिया डू? At that point, India has traditionally opposed creation of the blocks as they go against the fundamental spirit of equitable global governance and multipolarity. And India is always focusing on multipolarity. And India multipolarity in Indian historical imagination is about equity, inclusion and representation. और multipolarity पे अगर कल को क्वेश्चन आता है तो ये वाला पैराग्राफ आप डायरेक्ट यूज करोगे, that what actually is the basis of multipolarity when we talk about the Indian perspective of multipolarity, ठीक है। तो what is multipolarity? It is having multiple poles, multiple powers, multiple global powers, as there were only two powers at Cold War times, Russia and USSR and USA. Now there is multipolarity. There are multiple powers like India, China, Russia, USA, Europe, European Union, Africa, and they are aspiring to be the global powers. Now the China question, ठीक है, in when it comes to west and non-west countries, there is also one more challenge, that is China, है ना, how India will deal with China. So the question is that New Delhi must ask every step of the way as it pursues multipolar world order, whether or not it keeps whether India wishes or not, but it helps to boost the rise of China globally. How India aids the rise of China and strengthening of yuan. जब हम बोलते हैं डी डॉलराइजेशन हो रहा है या डी डॉलराइजेशन पे हमें काम करना है, डज इट एक्चुअली मीन, जो हमने पिछले हफ्ते में भी एक दो तीन एडिटोरियल्स ऐसे डिस्कस किए थे अबाउट डी डॉलराइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी,
when we talk about de-dollarization, is it actually helping rupee to internationalize, or is it actually helping China to strengthen its yuan? Okay, that is the question here. Because actually rupees, the strengthening of rupee is delusional according to the author, that is Haviman Jacob. China will influence an expanded ब्रिक्स. कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? देखो, अगर ब्रिक्स में 5 नेशंस है, तो विद द टाइम, अब जितना टाइम होगा, जितना हम आगे बढ़ेंगे, जितना ब्रिक्स एक्सपैंड होगा, उतना ही चाइना हर एक कंट्री को अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इट विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग दी कंट्रीज विच विल बी देयर इन दी एक्सपैंडेड ब्रिक्स. अब ये इनको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेगा. पैराडॉक्सिकली दिस विल tragically help India. This will tragically be more tragically, the more India helps strengthen non-Western institutions and frameworks, thereby it will weaken the post-Second World War order. देखो क्या होगा, जितना हम ब्रिक्स पे फोकस करेंगे, जितना हम नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करेंगे, उतना ही हमारा फोकस कम होता जाएगा उन इंस्टीट्यूशन से जो ऑलरेडी ग्लोबल गवर्नेंस में है. ठीक है, इट्स लाइक IMF, UN system, and World Bank, or institutions like WHO or WTO, है ना? These versus these institutions versus those institutions which are there currently evolving institutions like BRICS, SCO, Global South, है ना? तो these institutions, जितने भी ये institutions है, जितना हम ज्यादा इन institutions को फोकस करेंगे, जितना ज्यादा हम इन इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा जो ये वाले इंस्टीट्यूशन है ये कमजोर होते जाएंगे, जितना ये इम्प्रोवाइज होते जाएंगे. और अगर ये इंस्टीट्यूशंस मोर पावरफुल हो गए एंड दीज इंस्टीट्यूशंस आर सीइंग अ राइज ऑफ चाइना और अ डोमिनेंस ऑफ चाइना, है ना? तो एट दैट पॉइंट, इफ इंडिया इज deliberately or accidentally helping China to strengthen or to gain more power at this point of time, is the problematic era, is the dilemma where India has to play its like cards very well. Okay. So at this point of time, China's revisionist agenda is aiding this thing, that जितना हम इन दूसरे इंस्टीट्यूशंस को पावर करना स्टार्ट करेंगे, उतना ही हम ज्यादा हेल्प कर रहे हैं किसको? चाइना बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को और चाइनाज रिविजनिस्ट एजेंडा को. सो द चैलेंज बिफोर इंडिया इज टू चूज बिटवीन चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, और अ बैलेंस बिटवीन द टू. सो इफ द लेटर इज टू प्रीची, दैट इज हम वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दिस सीम्स टू बी टू प्रीची. हाउएवर, China centric world order seems to be more Machiavellian, and balancing is to going through more tougher in nature. जितना हम ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम उसमें फंसते चले जाएंगे, एंड इट विल गो मोर टफर एंड टफर in the upcoming times. Now, the India, while India must moderate the influence of China, while India must moderate the influence of China in non-Western forums. In doing so, it must also make sure not to alienate other countries in the global south who may see merit in China's efforts at expanding the membership of these forums. Okay? Now, the geopolitical predicament, as we said that earlier, New Delhi is hardly an easy one to navigate, that all of this game and all of these cards are hard to play. और इस टाइम पे न्यू दिल्ली का जो एक्शन है, दिस विल बी मोर चैलेंजिंग. और इसी चीज में अगर आप देखो तो आगे एक न्यूज मिलेगा आपको, ठीक है, विच वाज अबाउट द PM Modi arriving at, on the same page you will see that PM Modi arriving at the BRICS summit, and there are more possibilities of uh, the meet with Xi Jinping. All eyes on possible Xi Modi meet, है ना? And this is in such scenario, और इसी continuance में अगर आप देखो the meeting with Xi Jinping and PM Modi,
on the sidelines of BRICS summit will be a new challenge and will open new paradigms of this scenario of this uh, will open new paradigms of this debate. ठीक है. So now let's revise the basics of BRICS. ठीक है. चलो. ब्रिक्स का जो समिट ब्रिक्स का जो आइडिया था, दिस वाज गिवन बाय जिम ओनील in 2001, and in 2001 he said that जो 2050 आएगा, 2050 में ब्रिक्स विल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, by 2050 the four BRIC countries, not South Africa, that at that time would rule the world economy. ठीक है. दिस जिम ओनील वाज एन इकोनॉमिस्ट एट गोल्डमैन सैक्स. ठीक है. ब्रिक्स में कौन कौन है? देर इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. यू माइट बी नोइंग दिस थिंग. ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में हेडक्वार्टर. एंड the first summit of the BRICS was this BRICS was established in 2009. 2009 में ब्रिक्स एस्टैब्लिश हुआ था. ब्रिक्स 2023 का जो समिट है ये कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है साउथ अफ्रीका में, डरबन में. और ये कब होगा? ये अगस्त, अभी 22 से 24 तक होगा. ठीक है, अगस्त 22 से लेके 24 तक. ब्रिक्स 2022, ब्रिक्स 2022 जो 14th ब्रिक्स समिट था, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? 14th ब्रिक्स समिट ऑफ 2022. दिस वाज चेयर्ड बाय चाइना. ठीक है, वर्चुअली, ये ऑनलाइन हो गया था. एंड द डिस्कशन वाज बेस्ड बेसिकली ऑन रशिया यूक्रेन इश्यूज एंड द इश्यूज ऑफ टेररिज्म एंड द इश्यूज ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है, वर्ल्ड पीस, एंटी टेररिज्म एंड एंटी करप्शन पे बहुत सारे वहां पे बहुत सारा डिस्कशन हो गया था. However, BRICS 2021, this summit was hosted by India. This was the 13th summit and it was hosted by India. And this summit was hosted by India in September of 2021. एंड अर्लियर जो इंडिया ने आज तक समिट्स अपहोल्ड की है, दैट इज 2012, 2016 और 2021. तीनों समिट्स इंडिया ने होस्ट की है. और ये जो 14th समिट है वाज कंडक्टेड इन द वर्चुअल मोड, ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन. एंड दिस समिट वाज हेडेड बाय पीएम मोदी. थीम ऑफ दिस समिट वाज ब्रिक्स at 15 intra BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus. ठीक है. देन जो 13th ब्रिक्स समिट था, और यहीं पे हमने एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया था. व्हाट इज फोर्टालीजा डिक्लेरेशन? 2015 यूपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट इज फोर्टालीजा डिक्लेरेशन, और फोर्टालीजा डिक्लेरेशन क्यों बना था? बिकॉज इसी डिक्लेरेशन से देयर वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, चलो ये पॉइंट्स को याद रखना है. नाउ मूविंग टू सेकंड एडिटोरियल. इस एडिटोरियल में कुछ जगहों का नाम हाईलाइट किया गया, और अगर आप देखो तो 2012 से 2012-13 से लेके अभी तक 2021 तक यूपीएससी ने अराउंड हर ऑल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन पूछा है मिडल ईस्ट से या वेस्ट एशिया से. ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो हर एक बार हर एक पेपर में आपको ये दिखेगा दैट मिडल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से, द प्लेसेस इन न्यूज आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस रीजन. और आज के पेपर में, आज के इस एडिटोरियल में देर आर 2 to 3 प्लेसेस जिनके बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. दैट वन इज स्कोत्रा आइलैंड, सेकेंड इज पेरिम आइलैंड, बाबल मंडप, गल्फ ऑफ ईडन, स्कोत्रा आइलैंड, यमन के पोर्ट्स, वेर इज यमन, व्हाट इज रेड सी, where is Red Sea located, where is Persian Gulf located, what is the Gulf of Eden, where is Gulf of Eden located. All of this has to be taken care by you. ये आपको एटलस पे चेक करना होगा तुरंत उसी टाइम पे.
नाउ दी ऑथर हियर हाईलाइट्स वन थिंग, ठीक है, और ऑथर क्या बोलते हैं, दैट सऊदी अरेबिया और यूएई आपस में क्या है, इनका जो आपस में रिलेशंस है वो थोड़ा सा खराब हो रहा है, और इनका जो आपस में डिवाइड है वो बढ़ रहा है। और इनके डिवाइड होने के या इनके आपस में टकराव होने के क्या रीजंस है ना। तो पहला रीजन ये बोल रहे हैं, जो अभी अभी यूएई सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है जिनका नाम है एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, उनने बोला है दैट द यूएई हैज स्टैप्ड अस इन बैक एंड दे विल सी व्हाट आई कैन डू एंड आई विल डू वर्स देन व्हाट आई डिड टू कतर, है ना। तो दिस इज द स्टेटमेंट जो यहाँ पे इस ऑथर को तलमीज अहमद हु वाज फॉर्मर एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया एंड यूएई, बहुत जगहों पे इंडियन एम्बेसडर थे ये। नाउ द थिंग इज कि ये ऑथर यहाँ पे ये कुछ कुछ इश्यूज हाईलाइट करते हैं, ठीक है, जो इन दो कंट्रीज के आपस का बॉन्ड, उसमें जितनी भी फ्रिक्शंस है उनको हाईलाइट करते हैं। तो फर्स्ट वाज द रॉयल्स बॉन्डेड देयर कंट्रीज एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन द वॉर ऑफ यमन, और यहीं से स्टार्ट हो गई जितने भी इश्यूज हैं यमन के वॉर से। उनने दोनों ने साथ में काम किया, आईएसआई अल सीसीज जो रिजीम थी इजिप्ट में, उसके वर्किंग टुगेदर टू स्ट्रेंथन द रिजीम, and they viewed Iran as a regional threat. They disliked Muslim Brotherhood, and then they collaborated closely to implement blockade on Qatar. And in 2019, they also subverted the nascent democratic process in Sudan by backing the armed forces against the civilian prime minister. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक इन दोनों की जो कोलैबोरेशन है वो दिखाई गई है, दैट हाउ मच कोलैबोरेटिंग आर दे ऑन देयर रीजनल प्लेटफॉर्म्स। इन जुलाई 2017, UAE abruptly rejected the proposal to cut oil production put forward by OPEC Plus on the ground that its base production needed to be significantly increased। और इन्होंने ओपेक प्लस जो कि वर्ल्ड का कार्टेल है, ठीक है, ओपेक विच इज अ कार्टेल एट द वर्ल्ड लेवल ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसका जो डायरेक्शन था वो उनने मानने से मना कर दिया यूएई ने। उसके बाद साथ ही यूएई अब्रप्टली विथड्रू इट्स ट्रूप्स फ्रॉम यमन इन 2019। Plus, there is one more thing that UAE is mobilizing local fighters, backing the independence of South Africa, backing the independence in the southern areas of Yemen. UAE also expanded its maritime footprint in the regions, taking control of Yemeni ports, Socotra Island, Gulf of Aden, and Perim Island. अब ये islands कहाँ पे है? अगर आप देखो तो this is Persian Gulf, and Perim Island is here, and Socotra Island is here. इन दोनों को आपको एटलस पे हाईलाइट करके रखना है अपने पास। पर्शियन गल्फ में जितने भी आइलैंड्स है, इन आइलैंड्स में अबू मूसा और किशम, बहरीन, दीज आर सच आइलैंड्स जो इम्पोर्टेंट है। हॉर्मूज आइलैंड, इनको थोड़ा सा याद रखना है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एंड दीज कंट्रीज इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और ईरान, इन कंट्रीज को याद रखना है, विच आर सर्कमेंटिंग, विच आर सर्कुलेटिंग दी पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर शेयर करता है ओमान थ्रू दिस हॉर्न हेयर। डन। और आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में दैट गल्फ ऑफ दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। डन। चलो यहाँ तक हो गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप चेक करोगे और कितनी कंट्रीज है इसमें और कौन कौन सी कंट्री है वो आप देखोगे। सऊदी अरेबिया ऑन अदर हैंड was left to do fighting in Yemen with little show efforts over 8 years, and Syria, where Russian intervention in 2015 ensured that Assad government would not be toppled. तो these are the issues, ठीक है। सीरिया का इशू है, यमन का इशू है, प्लस बगदाद ईरान का sorry. So he highlights here that the reluctance of UAE has now escalated the matter between MBS and MBZ to such a level that they will face each other. Now, the problem here is the competition in the same sector they have. दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ठीक है, दोनों के एम्बिशियस प्लान है इन द गल्फ एंड रेड सी। Though much smaller in size, UAE has made it clear that it will not be kingdom's junior partner in the political, economic and logistical arenas. So now the point here is कि इस सिनारियो में नाउ हमारे लिए यूपीएससी के लिए
इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अब जो इशू बन रहा है यहाँ पे, जितने भी इश्यूज अब आएंगे आगे, अब जो न्यूज आएगी आगे फ्रॉम दिस वेस्ट एशियन रीजन, जितनी भी न्यूज आएगी पर्टेनिंग टू सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इसमें हमारे लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट बनता है तो दो चीजें हैं। एक, प्लेसेस इन न्यूज। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है, या कोई ऐसा इशू बनता है जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाए, जहाँ पे इंडिया का इंटरवेंशन जरूरी हो जाए, द ओनली इशू वेयर इट्स इम्पैक्टिंग द इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, वो एक इशू होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्लस अगर इन दो कंट्रीज के बीच में ऐसे ही चलता रहा, द रिफ्ट बिटवीन द टू कंट्रीज स्टार्टेड टू डाइवर्ज, तो उस चीज से जो ऑयल क्राइसिस आएगा, ठीक है, एंड हाउ इंडिया विल मैनेज इट्स ऑयल रिजर्व्स एंड हाउ इंडिया विल मैनेज इट्स ऑयल इंपोर्ट्स, दैट विल बी अ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड फर्दर। ठीक है, अभी के एडिटोरियल में वी नीड दिस, वी नीड दिस, बस दैट्स इट। मूविंग फॉरवर्ड। ओके, चलो। On smartphone manufacturing in India, why have the former Reserve Bank of India governor and Minister of State for Electronics? So there are two persons involved here. One is the Reserve Bank ka governor, earlier governor, and the Minister of State for Electronics. अब इन दोनों के बीच में they are on loggerheads, means they are opposing each other on some arguments. What are the key features of production linked incentive scheme and low level assembly jobs not good in the long run? अब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है और इससे रिलेवेंट कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे। ठीक है, key facts about PLI scheme. This PLI scheme, this was launched by Department for the Promotion of Industry and Industrial Trade, और इस PLI स्कीम का सक्सेस हम देखेंगे बट बाद में देखेंगे। ठीक है, लास्ट में। अभी देखो इशू क्या है PLI स्कीम से रिलेटेड। तो अराउंड 5 years ago गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट इट वांटेड मोर कंपनीज टू मेक थिंग्स इन इंडिया, एंड मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, बट मेक इन इंडिया के बाद वी स्टार्टेड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्यों थी? ताकि जो बाहर के मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो बाहर की लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करें और इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को सेटअप करें। मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में आएगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो द मेड इन इंडिया गुड्स एंड द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया विल इंक्रीज। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये दैट एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज और इंडिया का ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। हाउएवर, रघुराम राजन, है ना, द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, कंटेंट्स दिस थिंग एंड ही सेज दैट जो इंपोर्ट्स, यहाँ पे जिन इंपोर्ट्स की बात की जा रही है, दैट हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे विद दिस पीएलआई स्कीम, दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग द वे दे हैव बीन क्लेम्ड। क्यों नहीं जा रहा है वैसे? क्यों ये इंपोर्ट्स नहीं उतने हो रहे हैं जितने हमें बोले गए थे पहले? सो ही हाईलाइट्स हेयर दैट फर्स्ट थिंग, what like let's see what is PLI scheme. PLI scheme says that every job created and every rupee invested in manufacturing has a positive cascading effect on other sectors in the economy. देखो ये होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, हमारे क्वेश्चन के लिए। अगर PLI स्कीम पे क्वेश्चन आता है तो वी विल सी दिस, यूज दिस एज एन इंट्रोडक्शन, और वी विल यूज दिस एज अ कंक्लूजन। ठीक है, और वी कैन यूज दिस एज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दैट इज कि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम क्यों लाई थी? बिकॉज इट वाज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है तो क्या होगा इससे? गवर्नमेंट इज यूजिंग कैरेट स्टिक, द स्टिक इज रेजिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज को इंक्रीज करना, दैट इज टैक्सेशन ऑन इम्पोर्ट इज बीइंग इंक्रीज। और इम्पोर्ट पे टैक्सेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इंपोर्ट्स डिक्रीज करेंगे, इंपोर्ट्स विल बी डिसइंसेंटिवाइज्ड, और इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनेगा उनसे, दस मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव। और कैरेट क्या होगा? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, किस लिए प्रोवाइड करेगी? जस्ट टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्शन इज फ्रॉम द इंडियन लैंड,
एंड द प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। और उससे क्या होगा, here the government gives money to the foreign and domestic companies to manufacture goods in India। और उससे क्या होगा, द एनुअल पे आउट बेस्ड ऑन परसेंटेज रेवेन्यू जनरेटेड फॉर पास्ट 5 years। तो जो कोई भी कंपनी है जो यहाँ पे प्रोडक्शन अपना स्टार्ट करेगी, जो यहाँ पे अपना बेस बनाएगी, वो कंपनी जितना भी प्रोडक्शन करेगी उसका कुछ परसेंटेज उसको जितना भी उसने रेवेन्यू जनरेट किया उसका कुछ परसेंटेज उसको सब्सिडी के तौर पे वापस मिल जाएगा। दैट इज पीएलआई स्कीम। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आप देखो तो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा राइज किया है इंडिया में। और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भी जो कंपनीज है, माइक्रोमैक्स, सैमसंग, फॉक्सकॉन, इन्होंने दे कैन गेट अप टू 6% ऑफ देयर इंक्रीमेंटल सेल इनकम थ्रू पीएलआई प्रोग्राम्स। ठीक है। तो जितना भी इनका इंक्रीमेंटल सेल होगा, इंक्रीमेंटल सेल मतलब जितना ये लास्ट ईयर बेच रहे थे, जितने सेल्स इनके लास्ट ईयर के थे, अगर इन्होंने इस साल उससे ज्यादा सेल्स किया तो जितना एक्सेस में ये सेल्स कर रहे हैं उसका 6% इनको वापस मिलेगा एज एन इंसेंटिव। तो विद दिस स्कीम कमिंग इन पिक्चर, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स जो इंडिया के थे दे इंक्रीज्ड टू 300 मिलियंस फ्रॉम 2018 टू 11 बिलियन इन 2023। $11 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है बस मोबाइल फोन्स का फ्रॉम इंडिया। और यहीं पे अगर आप देखो, एंड वाइल इंडिया इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स वर्थ 3.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि मोबाइल फोन्स का एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज हुआ और मोबाइल फोन्स का इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ एज वाज क्लेम्ड बाय दिस स्कीम। और अगर आप देखो तो ये एक्चुअल नंबर्स जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। मोबाइल फोन्स का इंपोर्ट डिक्रीज हुआ है टू 1.6 बिलियन डॉलर्स ओनली एंड इंपोर्ट हैज इंक्रीज एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज टू 11 बिलियन डॉलर्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2023। बट व्हाट इज एक्चुअली द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय मिस्टर राजन? रघुराम राजन क्या बोलते हैं? रघुराम राजन बोलते हैं दैट जो इंपोर्ट हुआ है मोबाइल फोन्स का, मोबाइल फोन्स की कंपोनेंट्स का, मोबाइल फोन्स के कंपोनेंट्स का, जैसे कैमरा, बैटरी, सर्किट बोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन, ये जो इंपोर्ट हुआ है इन मोबाइल फोन्स के कंपोनेंट्स का ये इंक्रीज हुआ है। और मोबाइल फोन्स के कंपोनेंट्स का इंक्रीज, मोबाइल फोन्स के कंपोनेंट्स का अगर इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट्स जो है वो बाहर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और यहाँ मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होता है, यहाँ इंपोर्ट करने के बाद उनकी होती है असेंबली, है ना। दीज कंपोनेंट्स आर जस्ट बीइंग असेंबल्ड हेयर, और असेंबल करके इनका मोबाइल फोन बनाया जाता है। तो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर ही हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर ही हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, यहाँ पे देर इज जस्ट ओनली वन थिंग दैट इज असेंबली ऑफ दीज कंपोनेंट्स which is not actually helping in the setup of the assembly lines in India. So importing all of the necessary parts and assembling them in India to create made in India products। और उससे क्या होगा, अगर आप इतना ही कर रहे हो दैट आप बस मैन्युफैक्चर कर रहे हो बाहर से और इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एज लो लेवल असेंबली वर्क डज नॉट प्रोड्यूस वेल पेइंग जॉब्स। और असेंबली काम से तो जॉब मिलेगा नहीं, मतलब असेंबली का जितना भी काम होता है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन का जितना भी काम होता है, उस काम से देर इज नॉट इनफ जॉब्स विच विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस थिंग। ठीक है। हाउएवर इससे होगा क्या, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, दिस विल क्रिएट दैट if India is really pushing towards being self-sufficient manufacturing powerhouse, this is not actually going to happen. What is actually happening that government is using the taxpayers money to create an ecosystem of low level assembly jobs। और ये assembly jobs जो है we still are dependent on imports। जबकि हम 6% जो यहाँ पे लिखा था दैट 6% से इंक्रीमेंटल सेल्स का इंसेंटिवाइजेशन दे रहे हैं हम, वो इंसेंटिवाइजेशन से हमें कोई फायदा हो नहीं रहा है। हाउएवर जो मिनिस्टर है उन्होंने वापस आर्ग्यूमेंट दिया है कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लग जाएगा वैल्यू एडिशन करने में, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये जितने भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं कंपोनेंट्स के, दे आर नॉट जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स, दे आर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक डीएसएलआर कैमराज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके लिए भी कंपोनेंट्स का इंपोर्ट होता है।
So who is actually right here? Is the minister right, or is Mr. Rajan right? So the minister believes that it will take time for the project to show the results, their earning out of the incentivization or the incremental sales or the increase in the sales. Okay. Now, what are the key facts about this PLI scheme? PLI scheme के key facts देखते हैं हम. हाँ, PLI scheme के कुछ prelims based points. That increase in FDI, yes, 76% increase in FDI was there, which was witnessed through this PLI scheme. 76% increase in FDI in manufacturing sector. In financial year 2021-2022. Value addition, 20% of value addition in 3 years in the mobile manufacturing. India's export basket. The PLI scheme has transformed India's export basket. The PLI scheme has increased and expanded the India's export basket from traditional commodities to high value products. And export boosted by 2.56 lakh crores by 2022-2023. और इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है. इन्वेस्टमेंट, around 733 applications were received across 14 sectors to invest in these PLI scheme supported sectors. Then Indian farmers and MSMEs, yes, PLI scheme for food processing industry had a positive impact on the income of Indian farmers and MSMEs. ठीक है. Then import substitution. अब import substitution में, yes, import substitution 60% of imports were achieved. 60% of substitution was achieved in imports in the telecom sector. Growth in the drone sector. Drone sector has seen a 7 times jump due to PLI scheme. And yes, there was a reduction in imports. There was a reduction in imports, and imports of what? Pharma sector and a transfer of technology in medical devices was witnessed. Done. Then comes the next news, which is about the North Sea, and it says that there are concerns about drilling in North Sea. अब क्या कंसर्न्स है? अभी अभी यूके गवर्नमेंट ने पीएम ऋषि सुनाक हैज पास्ड दिस बिल जो अलाउ कर रही है नॉर्थ सी में क्या? ऑफशोर ड्रिलिंग. व्हाट इज ऑफशोर ड्रिलिंग? ऑफशोर ड्रिलिंग अगर आपको देखना हो तो यू कैन सी दिस इमेज that how many companies are there operating for gas exploration, oil exploration, what are the oil pipelines which are deep in the North Sea and they are supplying oil and gas to Britain. ठीक है. And now the issues which are highlighted here are about marine biodiversity and climate change which will be affecting. और अगर आप देखो तो जो ये ड्रिलिंग होती है, ऑफशोर ड्रिलिंग होती है, उससे मरीन लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, you can see that. ठीक है. Now what will be the impact of this? The impact is, first, where is North Sea located? So geographically North Sea lies between England and Scotland. ठीक है. तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में नॉर्थ सी पड़ता है. ठीक है. और नॉर्थ सी जो है, इंडिया स्कॉटलैंड ऑन इट्स वेस्ट एंड नीदरलैंड बेल्जियम एंड फ्रांस ऑन इट्स साउथ एंड नॉर्वे डेनमार्क एंड जर्मनी ऑन इट्स ईस्ट. तो जितनी भी इसकी कंट्रीज है, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, you need to remember all of these countries which are circumventing North Sea.
डन। सेकंड इज जेनेवा कन्वेंशन। 1958 का जेनेवा कन्वेंशन इसलिए है फॉर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। This Geneva Convention on Continental Shelf is an international legislation to establish right of countries over the continental shelves so that they can explore their continental shelf for exploration of oil, exploration of reserves, exploration of different exploration of different reserves which are beneath the sea or which are beneath the marine waters. डन। यहां तक हमने दो पॉइंट्स याद रखे, एक ये दोनों प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज ऑफशोर ड्रिलिंग अ प्रॉब्लम? बिकॉज दिस पुट्स वर्कर्स, वाटर्स एंड वाइल्ड लाइफ, तीनों चीजें ऑन रिस्क। बिकॉज ओशियंस आर नॉट स्टेबल, दे देर आर सुनामीज, देर आर डिजास्टर्स विद द ओशियंस, और उसकी वजह से वर्कर्स आर नॉट एट सेफ और द सेफ्टी वर्क प्लेस। वाइल्ड लाइफ ऑल्सो एंड वाटर्स, मरीन जो जितना भी मरीन लाइफ है वो सारा इम्पैक्ट हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, ओशियन वाटर एंड the sea level rise is also there. Direct risk to marine biodiversity, indirect risk to coral reefs, carbon pollution and acidic waters in the oceans. ये सब चीजें हैं जो हमें इम्पैक्ट करती है विद दिस ऑयल ड्रिलिंग और ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग। Plus, UK has not adequately prepared its climate change under the second national adaptation program. और अगर इनका क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन प्रोग्राम ही नहीं काम कर रहा है तो देन हाउ कैन दे डिटीरियोरेट ऑन द पॉइंट दैट दे विल एक्सप्लोर दीज सीज फॉर व्हाट? for their gas or for their natural reserves, or they will like cause damage to the marine life. So the licensing of new oil and gas extraction plants is incompatible with 1.5 degree limit in the rise in temperature as per the climate action tracker website. ठीक है, तो इसलिए जो ये राइज होगा इस चीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में, अर्थ के टेम्परेचर में, दैट इज हाईलाइटेड बाय क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर वेबसाइट ऑल्सो। तो दिस इज द की पॉइंट हेयर कि हमें याद क्या क्या रखना है, 1, 2 और 3 चीजें। ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट होगा ये हमारे मेंस में काम आ जाएगा। डन। नेक्स्ट न्यूज। ठीक है, आईसीएसएसआर। आईसीएसएसआर क्या है? आईसीएसएसआर इज इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च. This is under Ministry of Education. This ICSSR is an institution which was established in 1969 by the government of India. और ये इंस्टीट्यूशन करता क्या है? ये इंस्टीट्यूशन, इट रिव्यूज द सोशल साइंस रिसर्च, इट गिव्स एडवाइस टू इट्स यूजर्स, इट गिव्स एडवाइस to government on all the matters which pertain to social science research. ठीक है, एंड अभी जो आईसीएसएसआर में बोला है इंडियन गवर्नमेंट ने, दैट इज दैट इंडियन गवर्नमेंट विल फंड 500 रिसर्चर्स। और फंडिंग देंगे 500 रिसर्चर्स, किस लिए फंडिंग देंगे? ताकि ये रिसर्चर्स जो है स्टडी कर पाए किस चीज को? इन सारी स्कीम्स को। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि योजना, इन सब स्कीम्स को स्टडी करें, इनका इम्पैक्ट स्टडी करें जो लोकल लेवल पे हुआ है। और इस सब की वजह से क्या होगा? इस सब से होगा क्या? इस सब से होगा ये जो हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो इंडियनाइज हो जाएगी। वो इंडियन रिसर्चर होगा, इंडियन स्कीम है और इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है और इंडियन लैंडस्केप में वो स्कीम है। तो इससे जो पैरामीटर्स हो गए वो इंडियनाइज हो जाएंगे और उससे जो इस रिसर्च का आउटकम होगा, जो इन स्कीम्स का इम्पैक्ट होगा, वो एक्चुअल में पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी फॉरेन रिसर्चर्स होंगे वो उतना ज्यादा अच्छे से रिसर्च करेंगे, बट द प्रॉब्लम हियर विल बी अगेन कि उनका जो रिसर्च होगा वो बायस्ड होगा। ठीक है, इसलिए हम 2 टाइप्स ऑफ स्टडीज करा रहे हैं। One is by the collaborative institutions and one is by those institutions which are underprivileged institutions, and दोनों को ग्रांट मिलेगा, दोनों को पैसा मिलेगा इस चीज को करने के लिए, इस रिसर्च को करने के लिए। Then the next news is from the Amazons or the Ecuadorians who have rejected oil drilling. Again oil drilling. अब Amazon या जो यहाँ पे यसुनी नेशनल पार्क है, ब्लॉक 44 यसुनी नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क में भी ऑयल ड्रिलिंग हो रही थी। और इस ऑयल ड्रिलिंग के कारण
अगर आप देखो यहाँ पे मरीन लाइफ भी अफेक्ट हो रही थी, ठीक है। और ये इक्वेडोर है, और यहाँ पे ये नेशनल पार्क है जो लोकेटेड है। और इस चीज की वजह से अगर आप देखो तो जो लार्जर इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा था, लार्जर इम्पैक्ट वाज ऑन होल ऑफ द अमेजोन एरिया, ठीक है, पर्टिकुलरली इस वाले साइड का जो एरिया है। अब इससे हो क्या रहा था, अगर आप देखो तो पूरा स्टोरी अगर आप समझो तो पर्टिकुलरली जो ये इक्वेडोर है, इक्वेडोर इज ऑन द साउथ अमेरिकन वेस्ट कोस्ट, यहाँ पे इक्वेडोर लोकेटेड। दिस इनकम्पासेस, इसमें क्या क्या आता है, एक अमेजोन का जंगल आएगा, एंडीज आएगा और एंडियन हाईलैंड्स आएंगे, प्लस दी गैलापागोस आइलैंड ऑल्सो। जो गैलापागोस आइलैंड यहाँ पे ओशन में है। डन। अब यहाँ पे जो दूसरा चीज न्यूज में आया है दैट इज दिस यसूनी नेशनल पार्क। और ये यसूनी नेशनल पार्क कहाँ पे है, दिस यसूनी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इक्वेडोर ओनली। दिस इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। दिस इज लोकेटेड इन द अमेजोन रीजन ओनली ऑफ द इक्वेडोर। और अगर आप देखो तो 40% ऑफ इक्वेडोर्स क्रूड ऑयल इज सप्लाइड फ्रॉम दी यसूनी नेशनल पार्क। जितने भी रिजर्व्स हैं उन रिजर्व्स का 40%, जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं इक्वेडोर की, उसका 40% इज इन दी यसूनी नेशनल पार्क। सो दीज ऑयल फील्ड्स, दी यसूनी नेशनल पार्क इज हाउस टू व्हाट, Varauni people. The tribals which are inhabiting the region of Yasuni National Park are called as Varuni people. और वरुणी जो ट्राइब यहाँ पे रहती है, उन लोगों ने इस चीज को अपोज किया था कि जो यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग हो रही है। क्यों अपोज किया था, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हैम्पर हो रही है, वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उस चीज की वजह से वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरा तबाह हो रहा है। अब क्या हुआ था, 2007 में इक्वेडोर गवर्नमेंट ने एक प्लान लेके आए। उन्होंने बोला जितनी भी कंट्रीज हैं, एडजॉइनिंग कंट्रीज, कोलंबिया, पेरू, गयाना, वेनेजुएला, हम सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और हम सब लोग क्या करेंगे, हम सब लोग एक फंड बनाएंगे जो यूएन एडमिनिस्ट्रेड फंड होगा, ताकि जो इक्वेडोर है, इक्वेडोर की रीडेवलपमेंट के लिए, या यसूनी जो रेन फॉरेस्ट्स हैं, यसूनी नेशनल पार्क में जो रेन फॉरेस्ट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, क्यों वहां पे डेवलपमेंट के लिए फंड क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑयल रिजर्व जितने भी यहाँ पे हैं उनको बंद कर देते, ऑयल रिजर्व से ड्रिलिंग नहीं करते। बट 2013 में इक्वेडोर ने ये प्लान छोड़ दिया, और इक्वेडोर ने बोला कि हाँ, ऑयल जितनी भी यहाँ पे रिफाइनरी, ये क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। वी कैन डेवलप दी रीजन, वी कैन डेवलप दी ऑयल रिजर्व्स ऑफ दिस रीजन। अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है इन ऑयल रिजर्व्स का। बट रिसेंटली जो यहाँ की ट्राइब है, उनने एक इक्वेडोर के कोर्ट में केस फाइल किया था, और उस केस के बेसिस पे कोर्ट ने बोला दैट यस देयर विल बी अ रेफरेंडम टू बैन ऑयल ड्रिलिंग इन यसुनी नेशनल पार्क। और ये जो रेफरेंडम है, अभी 2 दिन पहले इस पे वोटिंग हुई है। वोटिंग होने के बाद जो लोग थे, उसमें से 58% लोगों ने वोट किया कि यहाँ पे बैन लगना चाहिए, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोस्फीयर है, उसको हमें सेव करना चाहिए और उसको बचाना चाहिए, और वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है बच जाएगा। और अगर आप देखो तो ये रीजन जो है वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट, या अमेजोन जो है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए, अगर आप देखो तो मतलब इतना बड़ा मतलब एरिया है, इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट है, which is actually this living Amazon report 2022 ने जो हाईलाइट किया था by वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, that around 35% of the rainforest in this area have either totally lost or highly degraded। अब अगर ऑलरेडी ये डिग्रेडेड है, और इसी अमेजोन बेसिन पे, या इस अमेजोन फॉरेस्ट जो है, ये अर्थ का एक, मतलब अगर आप देखो तो वी कॉल, अगर कहीं पे एक फॉरेस्ट का ट्रैक होता है किसी सिटी में, वी कॉल दैट द लंग ऑफ दैट सिटी, है ना। क्यों, बिकॉज दैट ओनली इज द रीजन विच इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर द एंटायर सिटी, एंड सेम इज द केस विद अमेजोन ऑल्सो। दिस इज प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन फॉर एंटायर वर्ल्ड, एंटायर ह्यूमैनिटी, है ना। तो the Amazon rainforests are actually large tropical rainforests which occupy the drainage basin of Amazon River and its tributaries in South America। और कितना बड़ा ये एरिया है, इट्स अराउंड 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया, ठीक है। दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर क्लोज्ड कैनोपी
within 28 degrees north or south of the equator. They are wet places receiving more than 200 centimeter of rainfall. सारे facts important है prelims point of view से. Such forests are found in Asia, Australia, Africa, South America, Central America and Mexico. कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं these tropical rainforests or tropical forests in these countries? The rainforest comprise the Amazon forest comprise 40% of the Brazil's total area and it's bounded by Guyana highlands. अब ये गयाना हाईलैंड्स ऑन द नॉर्थ, देखो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया दैट वेयर आर गयाना हाईलैंड्स लोकेटेड, एंड गयाना हाईलैंड्स आर लोकेटेड वेयर, यहाँ पे, ठीक है, ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ ब्राजील, एंड वेयर आर इंडीज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेट्यू टू द साउथ एंड अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ ऑफ दिस रीजन. डन. तो दीज आर द फैक्ट्स जिनको हमें रिवाइज करना चाहिए था और इनको हमें समझना चाहिए था, एंड दैट इज वाई द इक्वेडोरियंस हैव रिजेक्टेड दिस ऑयल ड्रिलिंग विच इज अ गुड थिंग एंड दे हैव वोटेड अगेंस्ट द ऑयल ड्रिलिंग इन दिस रीजन. डन. I wish you all the best from Perfection IAS. I thank you all for being into this discussion. 69th BPSC को देखते हुए our director of Perfection IAS is coming to Delhi and you will see the current special for Hindi medium students for the 69th upcoming BPSC. I thank you all and I welcome you all to join his classes offline at Delhi Center which are totally free. और अगर आपको कोई भी और मेंटोरशिप की ज़रूरत हो, किसी भी और चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर दैट इज 9031036712. गाइडेंस फॉर यूपीएससी 2024 or 2025. You need mentorship or any sort of guidance for this, you can call me on this number and you can ask for my name. My name is Shansha. ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो ऑन दिस नंबर. ठीक है. देन यू ऑल्सो इफ यू आर अप्रोचिंग बीपीएससी 69 और बीपीएससी 70th एग्जाम, you can contact us, you can get in touch with us, you will be guided with the most and best faculties in the entire industry. I thank you all for being here. All the best. Jai Hind, Jai Bharat.